तो क्या क्या चीजें डिस्कस की थी लास्ट टाइम? एनीवन प्लीज रिवाइज. यस. PT13 batch, PT12 batch. What we discussed till the date. बोला. सूरज, अपूर्वा. सर लास्ट लेक्चरला आपण पाय टेस्टची रिव्हिजन घेतली होती, म्हणजे पाय टेस्ट पर्यंत आपण कंप्लीट केलं होतं. पाय टेस्ट. ओके. त्याच्या आधी मग ते एक्सेप्शन हँडलिंग वगैरे झालं होतं सर. Exception handlings. Okay. Python side. हो. Then we started with the some of the basic concept, how to write the test case, what is meant by test cases, and again the reporting part, because that reporting part is very important for PyTest. And again we discussed to go with the Postman dictionary. झालंय complete. Suraj, dictionaries, Postman. Chalo, let me revise them. Before starting the actual APIs, जो आपके important topics है, 6 number. So API testing or API automation we are going to start from today onwards. Then after the API automation, we'll slightly move to the UI automation. So API intro. Chalo, dictionary. What is meant by dictionary? Anyone? चला, काय असते डिक्शनरी? कोणी म्हणू शकते? काय सांगू शकतात? And again, this is the interview question. What is meant by dictionary? Yes. Kishori, what is meant by dictionary? Suraj. Screen visible है? Audible? ऑडिबल सर. चलो, what is meant by dictionary? Simple question है ना? काही नवीन क्वेश्चन आहे का? Dictionary is a built-in data type. Build in data type. बरोबर आहे का हे? आणि व्हॅल्यू म्हणजे की पेअर मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करतं. Wait. Dictionary is not the built-in data type. It is the secondary data type. ठीक है. Built-in data type means आपके प्राइमरी होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, देन नन, स्ट्रिंग. It is a Next. collection of items and key. Collection of Items, keys. की एंड वैल्यू. Yes. की एंड वैल्यू का कलेक्शन, उसको हम आइटम बोलते हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट. Key is unique in nature. It is immutable. Key is unique in nature. Key is immutable. Key is immutable in nature because key is always hashable होती है. So immutable मतलब as a key you can consider all the primary data type plus tuple. List, set, dictionary as a key हम consider नहीं करेंगे. ठीक है. Next. आठवत नाही का? Values allowed both immutable and Values can be the immutable and mutable. डिक्शनरी क्या होती है? म्यूटेबल और इनम्यूटेबल? Mutable. Dictionary is a mutable in nature. Means mutable means on the same memory location we can change the dictionary. चला अजून. CRUD operation perform करते. Dictionary will perform the CRUD operation.
creation of dictionary, reading of dictionary, updation of dictionary, update and delete. How to create the dictionary? Anyone? Yes, please respond. How to create Using the dict dictionary? function Using dict using function or or curly bracket. curly bracket. Empty curly bracket is nothing but the dictionary. No? Okay. Yeah. रीड कसं करतात डिक्शनरीला? डिक्शनरीची की और व्हॅल्यू रीड कैसे करेंगे? फॉर लूप, while लूप, अजून d1 ऑफ की, d1 dot get key. Get will implemented based on the three type: key, none, or we can give also the default value. Value. ठीक आहे. हां, अपडेट. चला, डिक्शनरी कशी अपडेट करतात? अरे आहेत का नाही आहे? नसेल तर विल पोस्टपोन दिस सेशन टुमारो. ओके, यू कॅन रिवाइज ऑल द डिक्शनरी देन कम. मी 10 वेळेस एकच गोष्ट विचारतोय, डिक्शनरी म्हणजे काय? तुम्हाला आठवत नसेल तर त्याचा फायदा नाही ना, आहे का? चलो, लेट पोस्टपोन दिस सेशन देन विल गो फॉर टुमारो. प्लीज रिवाइज ऑल द सेशन फर्स्ट ना, कारण ब्लँकली येऊ नका ऑटोमेशनला. ब्लँकली आल्यावर आहे ना परत मग मी माझ्या फ्लोमध्ये शिकवेल, तुम्हाला समजणार नाही. ठीक आहे. चलो, टुमारो विल टेक द सेशन, एल्स I will provide all the recordings of this API. Let me stop. 10 वेळेस विचारल्यावर एकच गोष्ट सांगत नाहीये. ही गोष्ट होऊन किती दिवस झाले सांगा आता. तुम्हाला असं वाटतंय की सरांनी परत तीच गोष्ट रिपीट करावी? सूरज, शिवानी, किशोरी, तेजस, सबूर, अपूर्वा, येस सर. वाटतंय का तीच गोष्ट परत रिपीट करायला हवी? नाही सर. नको सर. नो सर. नो सर. मग ही आता डिक्शनरी आपण किती डिस्कस केलंय ते सांग. 4 hours I have discussed the dictionary. 4 hours में से 2 minutes आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो. डिक्शनरीचे किती लेक्चर झाले असतील आतापर्यंत? सर 4 hours तर डिस्कस केलेलं आहे की डिक्शनरी काय असते. अरे सेम क्वेश्चन इंटरव्यू मध्ये येणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय डिक्शनरी? नोट्स आहेत ना की नाही आहेत? येस सर. मग नोट्स ओपन करून तरी सांगा काय असते डिक्शनरी, सोबत असतील तर. सर अपडेटचे टाइप सांगायचे आहे का? हाँ, अपडेट मेथड बताओ. चलो, अपडेट मध्ये D1 आणि इन ब्रॅकेट मध्ये की आणि इक्वल टू व्हॅल्यू. की इक्वल टू वैल्यू. हाँ, सो अगर की प्रेजेंट नहीं है तो की प्रेजेंट नहीं है तो इंसर्ट करता है, राइट? और की प्रेजेंट है तो अपडेट करता है. अपडेट होईल. हाँ, पुढचं सेट डिफॉल्ट. सेट डिफॉल्ट. हाँ, सेट डिफॉल्ट. अजून व्हॅल्यू असेल तर अपडेट काय करतात, व्हॅल्यू नसेल तर हा. आपण की यस. अरे ह्या मेथड्स पण आहेत ना. कीज PT13 बॅच 10 वेळेस एक गोष्ट नका सांगायला ना, आधीच सांगतोय. बिकॉज सी आय हॅव द रेकॉर्डिंग, आय विल प्रोव्हाइड ऑल दी रेकॉर्डिंग्स टू यू APIs. एवढा टाइम नसतो. 10 वेळेस त्याच गोष्टी सांगायच्या ना. atoms. So what is mean by keys? What is mean by atoms? What is mean by values? Keys will return all the keys available inside the dictionary. Values will return all the values inside the dictionary. Atoms will return all the atoms inside the dictionary. ठीक है? चला, काही फायदा नहीं है तुमचा. चलो, let's discuss the API. सर So yes. सर नो इंडेक्स प्रिंसिपल इन डिक्शनरी है. हाँ, there is no indexing principle in dictionary. नो स्लाइसिंग इन डिक्शनरी. No slicing, no index. ठीक आहे. व्हॅल्यू डुप्लिकेट व्हॅल्यू. डुप्लिकेट व्हॅल्यू असतात, बट की
युनिक असतात ना. सर पॉप मेथड आहे, परत मर्ज आहे, त्याच्यात क्लिअर आहे, पॉप क्लिअर, पॉप ॲटम, पॉप डॉट ॲटम, D1 डॉट क्लिअर, अपडेट आहे, फॉर्म कीज. D1 डॉट अपडेट म्हणजे डिक्शनरी डॉट अपडेट करून पण हे फ्रॉम करता कीज है, फ्रॉम कीज हमने कीज क्रिएट किए थे ना. एक एग्जांपल भी दिया था, अगर मुझे मूवी की तिकीट बुक करना है तो फ्रॉम कीज व्हॅल्यूजला डायरेक्ट सेट करतो इट्रॅपल घेऊन. कीज असतील तेव्हा ते यूज होतं फ्रॉम कीज ऑप्शन. येस, फ्रॉम कीज. डेल डिक्शनरी आहे. येस, डिक्शनरी. डिलीट हा डिलीट. हाँ, डिलीट. सी, दिस कीवर्ड इज यूज फॉर ऑल. मेमरी मधून डिलीट करण्यासाठी. ठीक है, लाइक लिस्ट ला डिलीट करायचा है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मेमोरी से डिलीट करना है तो डेल कीवर्ड हम यूज करते हैं. सिंपल. पोस्टमॅन रेकॉर्डिंग कंप्लीट झालेत? नाही. येस सर. तर ते त्याची सेटिंग वगैरे नाही जमत आहे. कशाची? पोस्टमॅनची? हा पोस्ट म्हणजे डाउनलोडिंग केलंय. ते साइन अपचं मला ऑप्शन नाही येत आहे. साइन अप नाही, पोस्टमॅन तुम्ही डाउनलोड केल्यावर ओपन कराल. ठीक आहे, मग आधी तुम्हाला साइन अप इन द सेन्स लॉग इन करावं लागेल. ठीक आहे, असा ऑप्शन येतोय तुम्हाला. आता तुम्ही लॅपटॉपने जॉईन झालेत की कसं आहे? नाही, लॅपटॉप नाही. हा, ठीक आहे. असा ऑप्शन येतोय सर्व. हो हो. इथं साइन इनचं बटन, जर आपल्याला लॉग इन विचारलं तर साइन इन करायचं. ठीक आहे, एल्स इथं क्रिएट, आपण जेव्हा पोस्टमॅनला जाणार आहेत तेव्हा आपल्याला क्रिएट कलेक्शन करून याच्यात वन बाय वन आपण रिक्वेस्ट ऍड करणार आहे. हो. तर ते कलेक्शन परत आपण करता येते की एकच वेळा करावं लागते न्यू कलेक्शन? से कलेक्शन मल्टीपल करू शकतात, बट कलेक्शन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआईज. सपोज मेरे पास फर्स्ट वन कलेक्शन है. ठीक है, कलेक्शन 1, तो इसके अंदर आपके पास वन और मोर एपीआईज हो सकती है. 2 के अंदर वन और मोर एपीआईज हो सकती है, बट कलेक्शन के अंदर आप फ्लो भी डिफाइन करते हो. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ वेब एप्लीकेशन जिसको मुझे लॉग इन करना है, देन कुछ एक्शन परफॉर्म करने है, देन लॉग आउट करना है. तो फ्लो आपल्याला माहिती है. तो एपीआई 1 सपोज लॉग इन की एपीआई है, डॅशबोर्ड की एपीआई है, लॉग आउट की एपीआई है. सिक्वेंस मध्ये तर तुम्ही ते कलेक्शन क्रिएट करू शकता. कलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंस्टेंस ऑफ गोइंग फॉर ईच एंड एवरी एपीआईज, अगर मुझे उनका बंडल प्रोवाइड करना है, मल्टीपल एपीआईज किसी को हैंड ओव्हर करना है, तो मैं कलेक्शन प्रोवाइड करतो. ठीक आहे, हे आपण डिटेलमध्ये बघूया जेव्हा आपलं ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल पोस्टमॅन अँड देन द प्रॅक्टिकली एपीआयज बघू तेव्हा. ठीक आहे, अजून त्याच्यात काही डाऊट? त्याच्यात मेथड्स होत्या का रे? असे ऐकल्यात का कुठं HTTP मेथड्स? पोस्टमॅन केलंय तर हे माहिती आहे का? येस सर. कुठल्या होत्या? गेट, पोस्ट, पुट, पॅच, अजून एक डिलीट. डिलीट. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला ऍटलिस्ट मेथडचे नाव माहिती आहेत. त्याच्यात असं कुठं ऐकलं का सर, देर इज अ स्टेटस कोड? येस सर. कुठले 100. ऐकले? 100 to 199 इन्फॉर्मेशन. 200 सक्सेस. इन्फॉर्मेशनल सक्सेस. क्लाइंट एरर 200. 200 to 299 सक्सेस. 300
तर पुढे to 3 redirection. redirection. redirect हा 400 to Hmm. Client error. client error, client side error. client side error, आणि 500 to 599 server error. server side error. error, 500 to 599. ठीक आहे. त्याच्यात अजून असं काही ऐकलंय का सर? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, no? Yes. And again there is one architecture की client and server architecture. Client server. Client server Send are- client will send the request to the server, server will process that request and it will send the response. असं काही ऐकलं का? Yes. Yes, sir. जो रिक्वेस्ट जाती है वो कौन से फॉर्मेट में जाएगी सर? जेसॉन फॉर्मेट में. रिस्पॉन्स आएगा वो जेसॉन फॉर्मेट में आएगा. जेसॉन इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, की एंड वैल्यू, no, key and value. So जे तुम्ही APIs or we can say whatever you have listened through the recordings of Postman. So what is mean by API? कोणी म्हणू शकतं की सर API is a application programming interface. Application programming interface. So why we use the APIs? आणि APIs का असतात? Where to use the API, how to use the API and why to use the APIs. तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, APIs are nothing but application programming interface. मी रेकॉर्डिंग्स का दिलेल्या बिकॉज ऍटलीस्ट बिफोर कमिंग टू दिस सेशन ऍटलीस्ट तुम्हाला काहीतरी टर्मिनॉलॉजी नावं माहिती असते. ठीक है. सो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसको ये भी बोला जाता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस है, मल्टीपल एप्लीकेशंस, एंड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन दैट मल्टीपल एप्लीकेशन तेव्हा आपण एपीआई यूज करणार है. फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल बैचेस को एक ही एग्जाम्पल देता हूं कि सर मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एनी एप्लीकेशन, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस इज माय फेसबुक एप्लीकेशन, फेसबुक एप्लीकेशन, एंड इस फेसबुक एप्लीकेशन को यूज करेगा कौन? एंड यूजर. एंड यूजर मीन्स हम यूज करने वाले सर. यस. सो एज अ एंड यूजर जब मुझे फेसबुक एप्लीकेशन को यूज करना है, सो देयर इज सम कंडीशन कि यू नीड टू लॉग इन टू द फेसबुक, देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज द फेसबुक. एंड यूजर नेम पासवर्ड एंटर करा आणि लॉग इन ला क्लिक करा. यूजर नेम, पासवर्ड, लॉग इन पे क्लिक करो. सो इन दिस केस क्लाइंट कोण असेल? सर्व्हर कोण असेल? एनीवन. Who will be the client and who will be the server for this? आता आपण म्हणतोय ना की क्लाइंट सर्व्हर आर्किटेक्चर आपण फॉलो करतो, त्या टर्मिनॉलॉजीला आपण रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सायकल म्हणतो. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सायकल की रिक्वेस्ट विल सेंड फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर. अगर मुझे एप्लीकेशन यूज करना है तो मैं एज अ क्लाइंट वर्क करने वाला हूं. सो दिस इज द क्लाइंट, क्लाइंट इन द सेंस, एंड दिस इज द सर्वर. सर मला फेसबुकला लॉग इन करायचंय, मीन्स आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द फेसबुक कि आई वॉन्ट टू लॉग इन. सो फेसबुक क्या करेगा कि यूजर नेम लेगा एडमिन, पासवर्ड लेगा एडमिन, लॉग इन पे क्लिक करेगा. मला वाटतं सर डायरेक्टली लॉग इन होईल, बट internally Facebook is going to check whether this user is a valid user or not. तो Facebook का भी खुद का एक डेटाबेस होता है.
असं कधी होतं का की सर मी काही युजर नेम पासवर्ड टाकलं लॉग इन होईल? नाही होत. जब आप साइन इन करते हो, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, सो दैट टाइम in database they are going to save your username password. So internally Facebook is going to communicate with the database. डेटाबेस में चेक करेगा क्या ये यूजर वैलिड यूजर है क्या. मैनुअल टेस्टिंग में एक टर्मिनोलॉजी आपने देखी होगी, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, कि ये यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है क्या. ऑथेंटिकेटेड इन द सेंस कि इस यूजर का यूजर नेम पासवर्ड मेरे डेटाबेस में सेव है या नहीं. मीन्स फेसबुक इज अगेन गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस. डेटाबेसला ती रिक्वेस्ट सर इंटरनली दे आर गोइंग टू परफॉर्म सम एसक्यूएल क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर और सिलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर, वॉट एवर. फिर डेटाबेस विल प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट. डेटाबेस चेक करेगा अरे एडमिन नाम का यूजर और एडमिन पासवर्ड मेरे पास अवेलेबल है, मीन्स इट इज द वैलिड यूजर. सो डेटाबेस इज गोइंग टू सेंड रिस्पॉन्स टू द फेसबुक, यस दिस इज द वैलिड यूजर. तब जाके फेसबुक आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है कि यू कैन एंटर inside the dashboard, timeline, comment, likes, whatever. So इस सिनारियो की जब बात हुई, so there is one Facebook application, there is one database application. दोघं ऍप्लिकेशन डिफरंट लँग्वेजेस मध्ये इम्प्लिमेंटेड असतील. डेटाबेस इज इम्प्लिमेंटेड इन MySQL और SQL लँग्वेज. सपोज करो फेसबुक इज इम्प्लिमेंटेड इन पायथॉन and this is implemented in MySQL. काय होते सर, पाइथन का कोड MySQL समझ नहीं पाएगा, MySQL का कोड पाइथन विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो जब मल्टीपल एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन होगा, सो दैट टाइम वी आर यूजिंग द API. सो दिस इज द लॉगिन सिनेरियो. हर एक एप्लीकेशन में कुछ सिनेरियो कॉमन होते हैं, लाइक द लॉगिन इज कॉमन, सर्च बटन इज कॉमन, dashboard is common, logout is common. Again, suppose करो there is one application कि सर I want to buy the food from the Zomato. Zomato नाम का मेरे पास एप्लीकेशन है. तो आप क्या करते हो सर, Zomato पे लॉग इन करते हो एज ए एंड यूजर. आई एम गोइंग टू लॉग इन टू द Zomato. ऑर्डर सिलेक्ट करते हो, नो ऑर्डर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, देन ऑर्डर को ऐड करोगे कार्ड में, देन ऑर्डर को प्लेस करते हो. बट इंटरनली जेव्हा आपण पेमेंट करायला जातो, जब हम पेमेंट प्रोसेसिंग करते हो, तो आपको एक मैसेज आता है, रीडायरेक्ट टू गूगल पे. नो, रीडायरेक्ट टू गूगल पे मीन्स internally the Zomato application is going to redirect to the again the Google Pay application or Phone Pay or whatever. म्हणजे रिक्वेस्ट एंड यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की है जोमेटो को, जोमेटो इज गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट टू दी गूगल पे. गूगल पे क्या करेगा सर, हाँ पेमेंट प्रोसेस करेगा. वंस पेमेंट इज डन, वंस पेमेंट इज कंप्लीटेड, Google Pay will send response to the Zomato. Yes, payment is successful. हाँ, तो रिस्पॉन्स कसा येणार आहे, जेसॉन मध्ये येणार आहे. तो रिस्पॉन्स कसा येणार आहे, स्टेटस कोड मध्ये येणार आहे. मीन्स 200 सेंड कर दिया, यस सक्सेस. तो जोमेटो को तो समझ में आएगा, अरे पेमेंट इज कंप्लीटेड. अगेन जोमेटो एप्लीकेशन इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द गूगल मैप. क्यों गूगल मैप, कि मुझे उस क्लाइंट का एड्रेस लोकेशन चाहिए. मीन्स जोमेटो अगेन गोइंग टू सेंड रिक्वेस्ट टू द गूगल मैप कि ये जो एंड यूजर है ना XYZ, इसका लोकेशन क्या है. गूगल मैप उसको प्रोसेस करेगा, देन इट विल सेंड द रिस्पॉन्स टू द जोमेटो.
झोमॅटोची स्वतःची हॉटेल नसते ना. झोमॅटो विल सेंड रिक्वेस्ट टू द हॉटेल की दिस इज द फूड ऑर्डर गिवन बाय द एंड युजर, कॅन यू प्रोसेस दिस फूड. परत एक ऍप्लिकेशन आपल्या माइंडमध्ये येणार आहे. रियल टाइम सिनारियोज and real time application कैसे डिस्कस करते हैं. कम्युनिकेशन. सपोज करो कि सर दिस Zomato application is implemented inside the Python, Google Pay is implemented inside the Java language, this is implemented inside the .NET language and this is implemented inside the Python language. टेक्नॉलॉजी अलग आहे, ऍप्लिकेशन वेगळे आहेत, सर्वांची टेक्नॉलॉजी वेगळी आहे. मग पायथॉनचा कोड जावामध्ये रन होत नाही आणि जावाचा कोड पायथॉन मध्ये रन होणार नाही. अगेन .NET का सिंटैक्स अलग है, पाइथन का सिंटैक्स अलग है, बट दोनों एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करने वाले हैं. हे जे मी पाठवलं ना झोमॅटो टू गूगल पे, दिस इज नथिंग बट द रीडायरेक्ट. सो जो आपको स्टेटस कोड आएंगे 300 to 399 रीडायरेक्ट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन. कुठलंही पेमेंट करताना येतात आणि तुम्हाला एक मेसेज पण येतो, डोंट रिफ्रेश द पेज. बॅग घेऊ नका किंवा रिफ्रेश करू नका, पेमेंट फेल होऊ शकतं. का? कारण तुमची रिक्वेस्ट एका ऍप्लिकेशन वरून दुसऱ्या ऍप्लिकेशनला जाते. ऑडिबल? यस. ऑडिबल टू ऑल? यस सर. यस सर. सो मैं यही डिस्कस कर रहा हूं कि जब मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशन और जब मेरे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा, हर एक एप्लीकेशन में होता है क्लाइंट सर्वर. जेवढेही वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन मीन जो हम वेबसाइट पे यूज करते हो, www, जो वेब सर्वर पे डिप्लॉय किए जाते हैं. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है. तो मैं आज यही डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशन है, मल्टीपल एप्लीकेशन के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है, तर आपल्याला काहीतरी गोष्ट कॉमन लागणार आहे. ती पायथॉन मध्ये जी आहे ती जावा मध्ये पण पाहिजे, कारण डायरेक्टली कम्युनिकेशन नाही होणार. पायथॉनचा कोड जावा मध्ये रन होत नाही, इंडिपेंडंट. सो there is one syntax JSON हर एक लँग्वेज में प्रेजेंट है. HTML पण असतो, XML पण असतो, बट फॉर द रेस्ट API वी आर यूजिंग द JSON. सो पाइथॉन के पास भी JSON प्रेजेंट है, जावा के पास JSON प्रेजेंट है, .NET के पास JSON प्रेजेंट है, पाइथॉन के पास JSON प्रेजेंट है. तो इंटरनली API जो गेटवे क्रिएट कर रहा है, जो कम्युनिकेशन करने वाला है, वो JSON पे ही होगा. अगर मैं जोमेटो से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं गूगल पे को, तो वो मेरी JSON फॉर्मेट में जाएगी. जावा विल टेक केयर कि JSON को लेके आना है, उसके बाद उसको प्रोसेस करना है. जावा विल टेक केयर. जावा जो भी रिस्पॉन्स देगा वो JSON में देगा. पायथॉन म्हणेल अरे माझ्याकडे JSON आल्यावर मी माझा स्वतःचा डेटा टाइप मध्ये त्याला कन्वर्ट करेल. पायथॉन JSON को डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है. दैट आल्सो वी विल डिस्कस द सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ JSON डेटा टू द डिक्शनरी डेटा एंड कन्वर्जन ऑफ डिक्शनरी डेटा टू द JSON डेटा. सो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है मल्टीपल एप्लीकेशंस पे, वो आपका चल रहा है बस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे ही चलने वाला है. सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जब होगा मीन्स आई एम गोइंग टू परफॉर्म सम ऑपरेशन्स. कुठले ऑपरेशन? ऑल द एप्लीकेशनला 4 ऑपरेशन असतात. CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट. क्रिएशन ऑफ डेटा ऑन द सर्वर, रीडिंग द डेटा फ्रॉम, आता डेटा म्हणतोय, पुढे जाऊन मी याला बॉडी म्हणणार आहे, याला मी पेलोड म्हणणार आहे. अपडेशन ऑफ डेटा ऑन द सर्वर अँड डिलीशन ऑफ डेटा ऑन द सर्वर.
सो मल्टीपल एप्लीकेशन को कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक कॉमन गेटवे लगेगा. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द APIs, application programming interface. So these interface will allow us to communicate between multiple applications. And as a automation engineer, as a test engineer, we are going to verify and validate whether the communication is happen or not. We are going to verify and validate कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसका रिस्पॉन्स करेक्ट आ रहा है या नहीं. जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसका स्टेटस कोड करेक्ट आ रहा है या नहीं. So inside this API course, we are going to discuss the applications कसे कम्युनिकेशन करणार आहेत. आणि कम्युनिकेशन करताना ॲज अ टेस्ट इंजिनियर, ॲज अ ऑटोमेशन डेव्हलपर और एज अ पाइथन डेवलपर हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस API टेस्टिंग में क्या है. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस. येस सर. ठीक है. सो आई विल showcase some of the sample flow chart, how to deal and what is the APIs and everything. So before that, just try to understand कि सर मुझे मल्टीपल एप्लीकेशन को कम्युनिकेशन करना है. एंड देयर इज अ चांसेस कि जो मल्टीपल एप्लीकेशंस है डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंप्लीमेंटेड हो सकते हैं. तो जो कम्युनिकेशन होने वाला है, दैट कम्युनिकेशन वी आर गोइंग टू डन बेस्ड ऑन द जेसॉन डेटा. तो पाइथन क्या बोलता है, अरे मैं तो जेसॉन डेटा क्रिएट करके दूंगा, जेसॉन डेटा को रीड करूंगा. सो देयर इज वन टर्मिनोलॉजी, serialization and deserialization. So Python is going to convert JSON data to dictionary data. JSON काय असतं सर? JSON अगेन द की अँड व्हॅल्यू. JSON काय असतं? की अँड व्हॅल्यू, बट कंपल्सरी डबल कोड्स. की शुड बी इन डबल कोड्स. डिक्शनरीला तसं कंपल्सरी नाही आहे. सिंगल कोडही चालतात, डबल कोडही चालतो. सो जेसॉन डेटा टू डिक्शनरी डेटा में कन्वर्ट कर सकता हूं. दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट द डीसीरियलाइजेशन. एंड अगेन देयर इज अ डिक्शनरी डेटा टू जेसॉन डेटा. दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट द सिरियलायझेशन. कन्फ्यूज नाही व्हायचं. सिरियलायझेशन पण म्हणू शकतात, पिकलिंग ही म्हणू शकतात. पिकलिंग, there is again one module, pickle module. Based on that also you can convert the JSON to dictionary. और इसको sometimes we can also call, this is nothing but the marshalling. एकच टर्मिनोलॉजी है बट different नेम दिले. मार्शलिंग also you can call, और फ्लैटिंग इन द सेंस कि जो डिक्शनरी है उसको मुझे JSON में कन्वर्ट करना है. पाइथन टू JSON. सर पाइथन टू JSON करना है तो कैसे करेंगे? सो देयर इज अ वन मेथड. दैट मेथड इज नथिंग बट द डम्प्स मेथड. आणि ही मेथड प्रेझेंट आहे तुमच्या JSON मॉड्यूल मध्ये. देयर इज वन मॉड्यूल पाइथन में अवेलेबल है, JSON मॉड्यूल. आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट JSON डॉट डम्प्स डिक्शनरी. डायरेक्टली इट विल कन्वर्ट योर डिक्शनरी टू JSON. एंड अगर मुझे JSON डेटा टू डिक्शनरी डेटा कन्वर्ट करना है तो पाइथन क्या बोल रहा है? आई हैव द डीसीरियलाइजेशन. और इसको मैं अनपिकलिंग भी बोलता हूं. JSON डेटाला डिक्शनरी मध्ये कन्वर्ट करा. So for that, Python will provide one method. That method is nothing but the loads method. हा काय झाला रे? JSON data to no? Loads method. This is again available inside the JSON module.
तो आज का डिस्कशन यही है कि हाउ टू कन्वर्ट द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी सबको पता होना चाहिए। डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल इन नेचर, इट इज द कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू। की इज अ यूनिक इन नेचर, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। डिक्शनरी की मेथड पता होनी चाहिए, डिक्शनरी को इटरेट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। कीज, वैल्यूज, एटम्स मेथड पता होनी चाहिए। डिक्शनरी में से की को डिलीट कैसे करना है, बिकॉज ऑलरेडी वी डिस्कस दिस डिक्शनरी इन पाइथन इन डिटेल. So the first approach, sir, suppose there is one dictionary, any dictionary you can consider. Practically I am going to showcase D1 equal to 1 as a key, 10 as a value, name as a key, and RAM as a value, Pune, or we can say city as a key, and Pune as a value. Print D1. Type of D1 काय असेल रे? डिक्शनरी असेल का? येस और नो? अरे बोलो. ऑडिबल? यस सर. डिक्शनरी. सर मुझे इस डिक्शनरी डेटा को जेसॉन डेटा में कन्वर्ट करना है. सीरियलाइजेशन. सो वी हैव द JSON मॉड्यूल और मैंने क्या कर दिया सर, D2 इक्वल टू JSON डॉट डम्स D1. डम्स मीन्स डिक्शनरी टू JSON कन्वर्ट करना है. प्रिंट D2 कॉमा टाइप ऑफ D2. बेसिक गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टी आपल्याला लागणार आहेत ऍज अ ऑटोमेशन इंजिनियर. डम्प्स केला सर. अगेन जब आप इसको देखोगे कि सर जेसॉन डॉट डम्प्स एंड सेम व्हाट, मैं इसको लोड भी कर सकता हूं सर. आता सेम फाइल मध्ये करतोय तर आपण डंप यूज करतात. ठीक है. देर आर टू टर्मिनोलॉजी डम्प्स that we will discuss. Dumps, load, loads. ठीक है. सो बस मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखा रहा हूं कि अगर मुझे जेसॉन का डेटा डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है. सपोज सर दिस इज द D2 इज अ जेसॉन डेटा, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दो. D3 इक्वल टू जेसॉन डॉट लोड्स. अभी यहाँ पे आपको सिंटैक्स नहीं दिख रहा है, बट जब आप प्रैक्टिकली देखोगे, हिट करोगे एपीआई को, सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू चेक ईच एंड एव्हरी टर्मिनॉलॉजी. फक्त सिंटॅक्स सांगतोय की लोड्स कसं करायचं आणि डम्प्स कसं करायचं. एसटीआर में गया था सर, देन अगेन इट्स गोइंग टू द डिक्शनरी फॉर्मेट. मीन्स लोड का मीनिंग यही है कि मेरे पास अगर जेसॉन डेटा है, जेसॉन टू पायथॉन कर दो. म्हणजे मी पायथॉन मध्ये माझ्याकडे डिक्शनरी आल्यावर मला जे ऑपरेशन परफॉर्म करायचे ते ऑपरेशन मी परफॉर्म करू शकतो. डम्प्स का मीनिंग क्या है कि मेरे पास पाइथन को जेसॉन में कन्वर्ट कर दो. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? हाउ टू कन्वर्ट, बिकॉज दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. वी रिक्वायर दिस कन्वर्जन. जेसॉन डायरेक्टली पायथॉन घेत नाही, एरर देतो, कन्वर्ट करावं लागेल. आणि सर जो एपीआई का कम्युनिकेशन मैं करने वाला हूं, दैट कम्युनिकेशन आई एम डूइंग बेस्ड ऑन द CRUD ऑपरेशन. क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट. क्रिएट को बोला जाता है कि इन HTTP देयर इज वन मेथड, दैट मेथड इज नथिंग बट द पोस्ट मेथड. The post method requires two compulsory parameters. The first one is a API, the second one is a payload. Payload ही म्हणतात किंवा बॉडी ही म्हणतात. मीन्स मेरे पास एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, सर्वर एप्लीकेशन है. क्लाइंट से मुझे सर्वर में कुछ चीजें क्रिएट करनी है, डेटा को क्रिएट करना है, तो मैं पोस्ट मेथड का यूज करूंगा.
post method will have the API and payload, and this payload is always in the form of JSON. समजतं? ऑडेबल? येस सर. येस सर. नेक्स्ट वन कि सर अगर ये सर्वर से मुझे डेटा को रीड करना, अरे फॉर एग्जांपल सर मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूं, म्हणजे मी गूगल सर्व्हर वरून काहीतरी डेटा रीड करतो. एज अ एंड यूजर गूगल सर्च बॉक्स पे जाता हूं और मैंने सर्च कर दिया अमेझॉन, तो सर्व्हर मधून डेटा येतो, रीड करतोय. सो फॉर रीडिंग पर्पज एपीआय इज गोइंग टू यूज दी get method. Get method required only one parameter, API. पेलोड द्यायचं नाहीये, फक्त एपीआय द्या आणि डेटा घेऊन या, संपला. सर मुझे अपडेट करना है, बट अपडेट क्या करना है सर? मुझे डेटा को अपडेट करना है. सो अपडेट करते टाइम वी हैव द टू ऑप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्शंस. मुझे फुल अपडेट करना है, फुल अपडेट, और मुझे पार्शियल अपडेट करना है, पार्शियल अपडेट. फॉर एग्जांपल इन डेटाबेस देयर इज अ दिस सेम डेटा इज प्रेजेंट, 1 as a key, 10 as a value, name as a key and RAM as a value, city as a key, Pune as a value. फुल अपडेट म्हणजे सर्व गोष्टी अपडेट कर. मीन्स मुझे फर्स्ट की को वैल्यू भी अपडेट करनी है, नेम भी अपडेट करना है, सिटी भी अपडेट करना है. सो दैट टाइम वी आर यूजिंग द फुल अपडेट. एंड आउट ऑफ दिस, बिकॉज दिस डेटा इज प्रेजेंट ऑन द सर्व्हर, अपडेट करायचा म्हणजे डेटा प्रेजेंट आहे सर्व्हरवर, फक्त जाऊन अपडेट करा. And if there is a possibility कि I want to only update the partial data, कि मला है ना फक्त सिटी अपडेट करायची आहे. पार्शियल म्हणजे 1 or 2 field, 1 or more field, but full means all the fields. So for that purpose they have provided two very important methods, that nothing but for the put patch. पुट मेथड अपडेट करते, यस, बट जब हम प्रैक्टिकली देखोगे ना, पुट मेथडचे 2 मीनिंग येणार आहेत. मीनिंग नंबर 1, दिस इज नथिंग बट द प्री रिक्विजिट जो हम इंडस्ट्री में हैंडल करते हैं. इफ डेटा इज अवेलेबल ऑन सर्वर, then it's going to update the data, update the data. Second possibility, if data is not available on server, so it's going to create the data. म्हणजे पुट मेथड 2 पद्धतीने वर्क होणार आहे. जर डेटा अवेलेबल असेल तर अपडेट करना, नसेल तर क्रिएट करना. So practically I will showcase each and every APIs. Practically I will showcase how to do the automation of these, because this prerequisite we need to set. इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा एंड यू हैव द रिग्रेशन सूट. रिग्रेशन रन करताना एरर देतात. सो फॉर दैट पर्पज एज अ टेस्ट लीड और एज अ टेस्ट इंजिनियर वी आर सेटिंग सम प्रीरिक्विजिट. प्रीरिक्विजिट इन द सेन्स की जर मी गेट करतोय डेटा, पण तो डेटा तर प्रेझेंट पाहिजे तरच तर मी गेट करू शकतो, नाहीतर सर्व्हर साइड एरर येतील. सो दैट प्रीरिक्विजिट ऑल्सो आई विल डिस्कस. आज बस थेरोटिकल डिस्कस करूंगा. प्रैक्टिकल साइड में जब हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सो दैट टाइम वी विल सेट दैट ईच एंड एवरी प्रीरिक्विजिट. ओके, सो पैच क्या बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू अपडेट द पार्शियल डेटा. पार्शियल म्हणजे कुठलाही फील्ड.
आणि डिलीट का तो मीनिंग सेम आहे. डिलीट काय म्हणणार आहे, अरे मी डेटाला डिलीट करणार आहे, डिलीट फ्रॉम द सर्व्हर. सो दिस आर द CRUD ऑपरेशन दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन API. सर पोस्ट के लिए 2 पॅरामीटर कंपल्सरी आहे, API आणि पेलोड, कारण मला काय गोष्ट क्रिएट करायची ती पण पास करावी लागते. अपडेट के लिए, पुट के लिए भी 2 पैरामीटर कंसीडर होंगे, API एंड पेलोड, बिकॉज मैं पेलोड ही भेजने वाला हूं ना. बैच के लिए भी API एंड पेलोड. डिलीट के केस में सर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्यों 2 पॉसिबिलिटी? जब मैं API के टाइप डिस्कस करूंगा, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स अलोकेटर. ठीक है. So delete can work differently. Sometimes there is a possibility कि delete required the API, but कधी जेव्हा माझ्याकडं आयडेंटिफायर असेल, आयडेंटिफायर इन द सेंस आपकी API सपोज ऐसे API है, API सॅम्पल क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू 1, म्हणजे ID 1 ला डिलीट कर. These are the identifier query parameters. And delete also, there is a possibility कि delete also required API and payload. आता हे रियल टाइम एग्जाम्पलच्या गोष्टी करतोय. जब मेरे पास लोकेटर्स होंगे, मीन्स URL फक्त API and सॅम्पल, मग त्या पेलोड मध्ये आपण ती सेंड करतो की ID 1 डिलीट कर बाबा. So in API automation we are going to discuss these are the HTTP methods. कौन सी मेथड कब की जाती है, क्यों करते हैं, कैसे करेंगे, that we will discuss in detail. सर तुम्ही तर म्हटले आता, again I am drawing the same diagram. There is a client, there is a server, रिक्वेस्ट जाते हैं, रिस्पॉन्स येतोय. रिस्पॉन्स तुमचा JSON मध्ये येणार आहे, राइट. रिस्पॉन्स तुमचा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मध्ये येणार है. बट जब रिस्पॉन्स आता है ना, तब मेरे पास स्टेटस कोड्स भी आते हैं. प्रॅक्टिकली आपण बघणार आहेत कुठले स्टेटस कोड येतात, कसे येतात. बट फॉर द टाइम बिंग, फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पज, आई एम जस्ट considering there are 5 type of status code. ISRCS. is RC. So is RC क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशनल स्टेटस कोड, सक्सेस स्टेटस कोड, रीडायरेक्ट तेव्हाच येणार जेव्हा मल्टिपल ऍप्लिकेशन कम्युनिकेट करणार आहेत. मी ह्या पेजवरून दुसऱ्या पेजला रीडायरेक्ट होतोय. Amazonला ऑर्डर केली, Amazonला पेमेंट करताना Amazon तुम्हाला 2 सेकंड साठी रीडायरेक्ट करते गुगल पेला. मैसेज येतो व्हाइट स्क्रीनला, नो स्क्रोलिंग आइकॉन आता है ऐसे, रीडायरेक्ट, स्क्रोलिंग आइकॉन, रीडायरेक्ट टू गूगल पे. डोंट रिफ्रेश, खाली मैसेज येतो डोंट रिफ्रेश, डोंट गो टू बॅक, डोंट प्रेस बॅक बटन, काहीच करू नका. Client side error. C stand for client side error. क्लाइंट मीन्स सर क्लाइंट ने है ना API ही रॉंग दे दी है, क्लाइंट ने पेलोड चुकीचा दिला है, क्लाइंट साइड एरर येतो. सर मला लॉग इन करायचंय पण क्लाइंट है ना यूजर नेम पासवर्ड रॉंग देते लॉग इन साठी. अनऑथराइज एरर म्हणजे क्लाइंट साइड. सर जो मुझे API, जो URL, जो पेज मुझे ओपन करना है
वो पेज ही ओपन नहीं हो रहा है, एपीआई चुकीची है, नॉट फाउंड। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब एप्लीकेशन यूज करते हो ना, अगर आपने यूआरएल गलत दे दिया तो आपको ये स्टेटस कोड आता है 404 नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। म्हणजे कुठल्या साईटचे एरर आहे सर? आपणच एपीआय चुकीची दिलेली आहे। एपीआई म्हणजे यूआरएलच असते रे, बट यूआई के लिए हम यूआरएल ओपन करेंगे, बट बैकएंड से हम उसको एपीआई कंसीडर करेंगे। एंड लास्ट वन इज नथिंग बट द सर्वर साइड error. So these are the status code families. So inside the status code families, the first one is a informational status code that will start from 100 to 199. आता फक्त रेंज सांगतोय, प्रैक्टिकली जब हम पोस्टमैन में और स्क्रिप्टिंग में इंप्लीमेंट करेंगे तो ये सब स्टेटस कोड हमें मिलने वाले हैं। आपने वहां पे मैनुअल में पोस्टमैन में बस फैमिलीज देखे होंगे, बट इन डिटेल आय विल टेल यू नियर अबाउट 15 to 20 स्टेटस कोड जे आपण डेली बघणार आहेत आपल्या लेक्चर मध्ये। सक्सेस स्टेटस कोड विल स्टार्ट फ्रॉम 200 to 299. Redirect status code will start from 300 to 399. Client side error will start from 400 to 499. Server side error will start from 500 to 599. आणि आजचं जे मी लेक्चर सांगितलं त्याच्यातले इंटरव्ह्यू क्वेश्चन एपीआय टेस्टिंगचे आउट ऑफ 10 5 इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आजच डिस्कस झालेत। इंटरव्ह्यू क्वेश्चन म्हणतोय, वर्किंगला गेल्यावर हेच यूज करणार आहेत। First interview question, what are the status codes available? Sir, 5 type of status code. Second, what are the HTTP methods available? Get, post, put, patch, delete. And experience level पे next interview question, what is mean by put? So candidate बोलता है, sir, put method is going to update the data. No. My answer is no. Yes, it is going to update the data, but if data is available, then only it is going to update. Else, it will create the new data. समजतंय? Audible? येस सर. येस सर. आणि very famous interview question. What is the difference between post, put, patch? तुमच्या रिझ्यूमला जेव्हा एपीआय टेस्टिंग दिसणार तर पहिला क्वेश्चन इंटरव्ह्यूअर हाच विचारतो, टेल मी द डिफरन्स बिटवीन पोस्ट, पुट, पॅच। कारण ह्या 3 मेथड जर तुम्हाला समजल्या तर तुम्हाला एपीआय टेस्टिंग, एपीआय डेव्हलपमेंट काय असतं ते समजतं। सो इन डिटेल विल डिस्कस कि स्टेटस कोड कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीपल सर हाँ तो जो 300 ते 399 मधला आहे ना रिडायरेक्शन, तो कसा येतो? म्हणजे तो स्टेटस कोड कधी येतो? सो इंटरनली आपण जेव्हा मल्टिपल ऍप्लिकेशनला कम्युनिकेट करतो, सपोज, ठीक आहे, सपोज 300 ना, आता मी म्हटलं एक एक्झाम्पल, अमेझॉन मधून मी पेमेंट करणार आहे, कुठं जाणार आहे? गुगल पेला जाणार आहे। हो सर. ऍज अ एंड युजर आपल्याला इथं एक पेज दिसतं, तुम्ही ट्राय करू शकता, ठीक आहे, रिडायरेक्ट टू गुगल पे, रिडायरेक्ट पेज। मग तेव्हा 300 से स्टेटस कोड येतात। मग रिडायरेक्ट सम एप्लीकेशन क्या बोलता है, रिक्वेस्ट लेता है और आगे भेज देता है, फिर से रिस्पॉन्स नहीं लेता है, नेक्स्ट एप्लीकेशन विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट। म्हणजे तेव्हा हे स्टेटस कोड येतात, लाइक द 301 मूव परमानेंटली, कि इस एप्लीकेशन से अनदर एप्लीकेशन पे आप परमानेंटली मूव हो जाओ। आता अमेझॉन गूगल पे ला रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, बट गूगल पे का यूआरएल फाउंड नहीं है, तब जाके ऐसे एरर आता है 302 फाउंड। मीन जिसको रिक्वेस्ट भेजना है ना, तो उसका यूआरएल मेरे पास अवेलेबल है। हाँ, अमेझॉन के लिए
पेमेंट करने के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन आहे सर. गूगल पे ने करू शकतात, फोन पे ने करू शकतात, अमेझॉन पे ने पण करू शकतात. हो, मल्टीपल आहेत. तेव्हा अमेझॉन कडे चॉईस आहे. आय हॅव द मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉईसेस. सो इंटरनली API will go for 300. The meaning of 300 is nothing but the multiple choices. ही पेमेंट प्रोसेस करण्यासाठी माझ्याकडे मल्टिपल चॉईस आहेत. अपूर्वा, हो सर. पण तो ठीक आहे. स्टेटस कोड आपल्याला दिसतो? तो स्टेटस कोड नाही, ऍज अ एंड युजर नाही दिसत. हा, कारण तो कधी दिसला आपल्याला नाही. फक्त पेज दिसतं ना हा. रिडायरेक्टचं. आता ते पेज अवेलेबल आहे का बघूया. इमेज असेल, आय विल शो केस. असं पेज दिसतं जेव्हा तुम्ही पेमेंट करतात. एनी रिडायरेक्ट फिग्मा. आहे का माझ्याकडे? चला आपण एक ट्राय करूया. बट प्रॅक्टिकली बी ट्राय करू शकतो आपण. सपोज आय वॉन्ट टू बाय दिस मोबाईल. तर याला ईमेल ॲड्रेस लागेल का? पासवर्ड ठीक आहे. सो लेट्स सी. सो आय हॅव चूज वन ऑर्डर. म्हणजे मी आता अमेझॉनला आहे. ठीक आहे. सपोज आई वॉन्ट टू मेक द पेमेंट. सो पेमेंट के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है. सो अमेजॉन विल इंटरनली गो फॉर द 300 की आई हैव द मल्टीपल चॉइसेस. जब मैं पेमेंट पे क्लिक करूंगा, यूज दिस पेमेंट, लेट मी चूज फॉर नेट बैंकिंग, यूज दिस पेमेंट. वन टाइम पासवर्ड डिलीवरी. इथं एक पेज यायला हवा. सी रिडायरेक्ट टू द पेज आलं होतं का? ऑडिबल? येस सर. See, let me go back. Secure redirect to the bank page means Amazon is going to communicate with the bank now. ओके सर. हे आपल्याला दिसतं ऍज अ एंड यूजर, पर बैक एंड में 300. समजतं? ऑडिबल? येस सर. लेट मी इन्स्पेक्ट दिस वन. नो, मी आता त्याला स्लो केलेला आहे. लेट मी इन्स्पेक्ट अँड नेटवर्क. स्टेटस कोड मी काय केलंय? ऑर्डर प्लेस करतोय, म्हणजे मी काहीतरी क्रिएट करतोय. बैकएंड से आप जब देखोगे आई एम परफॉर्मिंग सम पोस्ट मेथड. स्टेटस कोड येतोय 200. HTTP protocol, this also we'll discuss the hypertext transfer protocol. HTTP 1.1 generally we are using the version. URL is nothing but the API and path. बघूया डिटेल.
ओ ओ ओ ओ इथं जाऊ आहे. URL है, दिस इज द URL. क्वेश्चन मार्क और आयडेंटिफायर नाही आहे. कुठली मेथड आहे? पोस्ट. पेलोड कसा जातोय बघा. डिक्शनरी आहे का? आपल्याला डिक्शनरी दिसते, बट इंटरनली ही एक जेसॉन आहे. मेसेज ID, स्कीम ID, रिस्पॉन्स एम्प्टी आलेला आहे, कारण ते अजून सक्सेसच झाला नाही. जर सक्सेस झाला असतं तो सक्सेस रिस्पॉन्स. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? मैंने रीडायरेक्ट पे अभी तक मैं वहां पे ही हूं. इट्स चेकिंग. प्लीज वेट. कुठल्या कुठल्या ऍप्लिकेशनला इथं मेसेज येतात. डोंट रिफ्रेश द पेज रिफ्रेश करू नका किंवा बॅक बटनला क्लिक करू नका. एज ए एंड यूजर मैंने क्या फॉलो किया? आई हैव चूज वन मोबाइल. माझ्या बकेटमध्ये चेकआउटमध्ये ॲड केला. पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट केला. प्रोसीड पेमेंटला क्लिक केला. प्रोसीड पेमेंट. मग मी आता ॲमेझॉनला नाही पेमेंट करत आहे, बट आय एम गोइंग टू रीडायरेक्ट टू दी बँक ॲप्लिकेशन. समजतं? ऑडेबल? येस. ठीक आहे. सो तेव्हा रीडायरेक्ट एरर येतं. होप द आयडिया इज क्लियर. लेट मी स्टॉप दिस वन. सो क्या डिस्कस कर रहा था? स्टेटस कोड. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम. इन्फॉर्मेशनल लक्षात ठेवायचेत का? असं. हां. इज RC इन्फॉर्मेशनल स्टेटस कोड 100 to 199. आपल्याला सर्व 500 स्टेटस कोड माहित हवे असं नहीं है. एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर जो डेली हम यूज करते वही हमको पता होगा. इन माय एक्सपीरियंस, सपोज आई हैव द 5 years of experience as a API automation. Interviewer will ask, can you list out any 5 status code that you have faced during your automation? 5 म्हटलं. नियर अबाउट वी विल डिस्कस द 15 प्रॅक्टिकली येतात. इन्फॉर्मेशनल सक्सेस. तर सक्सेसचा आजच आपण आत्ता मी तुम्हाला दाखवला 200 to 219. हाँ, पोस्ट कॉल किया और ओके यहाँ पे दिखा था ना, ओके. अरे यार, आई हैव क्लोज. हाँ, एनी एप्लीकेशन को जब आप इंस्पेक्ट करोगे, सो इंटरनली नेटवर्क टैब में आपको APIs दिखते हैं. दिस आर द APIs. मेथड्स दिखेगी, URL दिखेगा, स्टेटस कोड दिखेगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, व्हॉट यू आर युजिंग. आता हे पेज रिफ्रेश होतं. या पेजला जो डेटा येतोय बॅकएंड मधून, तो डेटा ह्या URL थ्रू येतोय. URL मीन्स द API थ्रू. कुठली मेथड? गेट, पोस्ट, पुट, पॅच, डिलीट. पोस्ट मीन्स क्रिएट. स्टेटस कोड काय येतोय? 204. 204 जनरली वी कन्सिडर ॲज अ नो कंटेंट. म्हणजे रिस्पॉन्स मध्ये काहीच येत नाही. नो कंटेंट म्हटलं जातं. गेट, त्याच्यावर स्क्रोल डाऊन केला ना, 200 मीन्स ओके. 204 नो कंटेंट मीन्स आपने जो API है ना, API इज करेक्ट, बट आते टाइम कंटेंट ही नहीं आ रहा है. नथिंग इज देयर. So these are the status code. Redirect. So we'll try to see the real time redirect status code also. अगर मुझे कोई एप्लीकेशन मिल रहा है, so inside that application we'll try to see this also. No worries. Client side errors 400 to 499. Server side error 500 to 599.
Client side error, sir, you can put anything. So suppose I have one URL. Is URL give ka? URL means this one, HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Yes, it stands for secure. HTTP Amazon. And I'm going for sample. Suppose I'm going for Vaibhav.in. No site is okay. Let me go for .com. मला अशी API हिट करायची आहे जी मला पेज नॉट फाउंड देईल. Amazon. नाही. We'll go for this. www. EBC. Can't read. Okay. Check. Running the net product. Okay. This also will discuss. चलो client side का मेरे पास तो एग्जांपल भी होगा. UI automation में भी सेम डिस्कस करता हूँ, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. So for that purpose, suppose I have the basic authentication. Basic authentication. ठीक है, अभी मैं रियल टाइम चीजें डिस्कस कर रहा हूँ. बेसिक ऑथेंटिकेशन. ये एप्लीकेशन तभी ओपन होगा जब तक मैं इसका यूजर नेम पासवर्ड एंटर नहीं करूंगा. दिस इज नथिंग बट द ऑथेंटिकेशन. तर मला ही सेम API ला परफॉर्म करायचे. सो इन प्रैक्टिकल विल डिस्कस. सो वी रिक्वायर्ड वन लाइब्रेरी. दैट लाइब्रेरी इज नथिंग बट रिक्वेस्ट लाइब्रेरी. नेक्स्ट सेशन में रिक्वेस्ट लाइब्रेरी पे डिस्कस करने वाला हूँ कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम डिस्कस करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करना है. सो वॉट एवर वी आर परफॉर्मिंग, पीप, इंस्टॉल, रिक्वेस्ट सेम. मी फक्त आता प्रॅक्टिकली एक एक्झाम्पल दाखवतोय क्लायंट साइड एरर कधी येते. सो गेट कॉल परफॉर्म करना है. सो रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड आई रिक्वायर द API. So suppose this is my API and printing the print response. आणि ही URL हे ॲप्लिकेशन काय म्हणते, जोपर्यंत तुम्ही यूजर नेम पासवर्ड देत नाही तोपर्यंत मी लॉग इन करणार नाही. मी फक्त एक सिंपल कोड लिहिला. हा कोड काय करतो दॅट वी विल डिस्कस लेटर. इट इज परफॉर्मिंग वन गेट ऑपरेशन. मीन्स द डेटा रीड करने का ट्राय कर. अँड आय एम जस्ट रनिंग दिस. पोस्टमॅन मध्ये ट्राय करू शकता. इट्स गोइंग फॉर 401 क्लायंट साइड एरर. 401 इज स्टँड फॉर, कोणाला माहिती असेल तर, अनऑथराइज. मीन्स इस एप्लीकेशन को अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड पास करना होगा. ऑथेंटिकेटेड यूजर. फॉर एग्जाम्पल ये सेम चीज मैं एज अ मैनुअल UI पे परफॉर्म कर रहा हूँ. जो पर्यंत मी यूजर नेम, सो फॉर दिस एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट यूजर नेम इज एडमिन एंड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड इज एडमिन. साइन इन. तो एप्लीकेशन लॉग इन होते. बट API में जब आप परफॉर्म करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू लॉग इन. एरर येतोय 400 फैमिली क्लाइंट साइड की. क्लाइंट साइड से ही एरर है. क्लाइंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द यूजर नेम पासवर्ड. So in API we will provide username password. How to provide? So there is one parameter, auth parameter. So this parameter is responsible to take one tuple. The tuple का first index आपका username होगा, tuple का second index आपका password होगा. Now I am going to access this API. 200. समझते हैं? हाँ. Audible. यूजर नेम पासवर्ड दिल्यावरच ते ॲप्लिकेशन मी ॲक्सेस करू शकतो. नाही दिलं तर क्लायंट साइड एरर. कोणाची चुकी आहे? क्लायंटची चुकी आहे. ॲप्लिकेशन तर रनिंग आहे सर्व्हरला.
Sir, for example, I am entering the username is admin123. Username is wrong. Password is correct, but still I am getting the unauthorized. की ह्या युजर साठी माझ्या डेटाबेस मध्ये युजर नेम आणि पासवर्ड प्रेझेंट नाहीये. आपण रिक्वेस्ट सेंड करतोय एज अ एंड यूजर, बट डेटाबेस से उस एपीआई से मुझे एरर आ रहा है. So this type of scenario also we are going to discuss in API. APIs and UI, same thing, but APIs are fixed in nature, UIs can be the change. So जब API की बात होगी तो API के अंदर आपके पास दो टाइप के API हम डिस्कस करने वाले हैं. The first one is a URL and URI. So in detail we will discuss the path parameter, query parameters. बस आज के सेशन में मैं यही कन्सिडर कर रहा हूं की ऍटलिस्ट एपीआय म्हणजे काय जे तुम्ही पोस्टमॅन मध्ये शिकलेले, पोस्टमॅन पाहिलेत त्याच गोष्टी. फक्त आता मी रियल टाइम, बिकॉज दॅट सेशन आय नो दॅट आर दी फ्रेशर बॅच. सो वॉट एव्हर सर डिस्कस दॅट इज ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन टू एपीआयज. बेसिक गोष्टी आहेत. एपीआयज काय करतात, बट इन डिटेल हमें एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर एपीआईज यूज करना है. सो लेट्स सी द सम ऑफ द एग्जांपल कि मेरे पास सपोज आई वांट टू गो फॉर द फूड डिलिव्हरी. दिसतंय सर्वांना? ऑडेबल? यस, ऑडेबल टू ऑल. जो मैंने एप्लीकेशन लिया था, फर्स्ट वन कि मुझे अमेजॉन पे जाके कुछ फूड ऑर्डर करना है. सो एज ए एंड यूजर मैं क्या करता हूं सर? फर्स्ट आई एम गोइंग फॉर द लॉग इन. आई विल एंटर द यूजर नेम, पासवर्ड, आई विल क्लिक ऑन द लॉग इन बटन. मग इंटरनली जो मैंने डिस्कस किया की यूजर नेम पासवर्ड इज गोइंग टू चेक ऑन द डेटाबेस. MySQL मध्ये इम्प्लिमेंटेड आहे, हा वेगळ्या लँग्वेज मध्ये इम्प्लिमेंटेड आहे. जी पण आपण परफॉर्म करतोय, लॉग इन करतोय म्हणजे आपण पोस्ट कॉल परफॉर्म करतोय. अँड दिस इज द एपीआय, ऑथेंटिकेटेड एपीआय. ऑथेंटिकेटेड एपीआय मीन्स जो यूजर नेम पासवर्ड. ऑथेंटिकेशन के 3 different way we are going to discuss: barrier authentication, basic authentication, token authentication. So username password मैंने एंटर किया, then API will take that username password. कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये येणार आहे सर? हे JSON मध्येच येणार आहे. API will take that JSON डेटा और डेटाबेसला पाठवणार आहे व्हॅलिडेट करण्यासाठी की हा युजर नेम जॉन आणि हा पासवर्ड आपल्याकडे रजिस्टर आहे का? झोमॅटो मध्ये रजिस्टर आहे का म्हणजे ऑथेंटिकेटेड आहे का? ऑथेंटिकेशन. मग डेटाबेस प्रोसेस करतो. डेटाबेस विल गोइंग टू प्रोसेस मीन्स डेटाबेस विल परफॉर्म सम क्वेरी. सिलेक्ट ID from user table and they are going to validate. Okay, so this user is present. So database क्या कर रहा है? Database is going to send a response to the this API. आणि तेव्हा जाऊन आपलं लॉग इन होतं. तुम्हाला वाटतं सर आम्ही फक्त लॉग इनला क्लिक करतो, अरे बट बैकएंड में मल्टीपल प्रोसेसेस रन होती है, बैकएंड में आपके एपीआई हिट होती है. मग असा रिस्पॉन्स कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये? जेसॉन की इस यूजर का टोकन ये है, मैसेज लॉग इन सक्सेसफुल. सो दिस इज ओनली द फ्लो चार्ट ऑफ लॉग इन एपीआय. आणि लॉग इन एपीआय प्रत्येक ऍप्लिकेशन मध्ये असतो. फेसबुकलाही लॉग इन लागणार आहे, इंस्टाग्रामला लागणार आहे, व्हॉट एव्हर द वेब ऍप्लिकेशन यू आर युझिंग नो. सो फॉर दॅट पर्पज द लॉग इन इज रिक्वायर्ड. बुक माय शो, मूवी बुक करायची सर, लॉग इन रिक्वायर्ड. फ्लिपकार्ट लॉग इन रिक्वायर्ड है. Amazon login also required. Any web application, ITR,
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फिल करना है, लॉगिन रिक्वायर्ड है। सो इंटरनली मैं बस यही डिस्कस कर रहा हूं आज कि जो भी मैं प्रोसेस करने वाला हूं वो प्रोसेस मेरी एपीआई के थ्रू होगी। मैं एपीआई के थ्रू जो जो चीजें होने वाली है उस पे मैं मेथड्स यूज करूंगा, जो रिस्पॉन्स आएगा उस पे मैं स्टेटस कोड यूज करूंगा। The second- रेस्ट एपीआय सर्व्हर लिहिलंय आणि खाली ऑर्डर एपीआय लिहिलंय. कुठलं तर कुठलं? वरच रेस्ट एपीआय सर्व्हर सर, ऑथेंटिकेशन जे एपीआय आहे ना, हा 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 पहिली डायग्राम त्याच्यात नाही ते नाही रेस्ट. हे जस्ट नाव आहे, ठीक आहे. हे अच्छा, आणि ऑर्डर एपीआय असं समजा, ठीक आहे. दिस इज द फूड डिलिव्हरी ऑर्डर एपीआय. गेट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, पुट ऑर्डर, ती एपीआय असं समजा, ठीक आहे. ओके. ठीक है. द सेकंड वन कि सर मैंने लॉग इन कर दिया, दैट्स फाइन, इट इज वर्किंग फाइन, आई वांट टू गो फॉर फूड ऑर्डर. तो मैं क्या करता हूं सर, पिज्जा आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करतो. बट इंटरनली आपण प्लेस ऑर्डरला क्लिक करतात तर आपण काहीतरी क्रिएट करतोय. एपीआय मीन्स आई एम गोइंग फॉर सम पोस्ट कॉल. आपली एपीआय जाते बिजनेस सर्विस, जो जोमैटो की बिजनेस सर्विस है ना. बिजनेस सर्विस मीन्स दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ अगेन द मल्टिपल एपीआय, मल्टिपल एप्लीकेशंस. की रेस्टोरेंट सी कम्युनिकेट करणारे झोमॅटो मीन्स द रेस्टोरेंट की एपीआय होगी. रेस्टोरेंट ऍप्लिकेशन कशात इम्प्लिमेंटेड आहे आपल्याला काही घेणं देणं नाहीये. आपल्याला फक्त त्याला हा जेसॉन डेटा द्यायचा आहे की पिझ्झा हब ऑर्डर आलेली आहे, तो तुम्ही प्रोसेस करा. Check item availability, again the API, calculate price. Then the same order is going to save inside your database. Order save, मग database तुम्हाला रिस्पॉन्स देतोय. बिजनेस सर्विस मीन जो जोमैटो के मल्टीपल प्रोसेस फॉलो करता है. मग ऑर्डर रिटर्न है ना. एंड देन एज ए एंड यूजर आपको दिखता है कि सर मुझे बस ऑर्डर प्लेस हुए. अरे बट जब आप उसको इंस्पेक्ट करोगे, अगर जोमैटो ने उसकी एपीआई पब्लिश की है, एंड यूजर को अगर दिख सकती है, तो आपको जोमैटो एप्लीकेशन को इंस्पेक्ट करने के बाद ऐसे डेटा दिखेगा कि दिस इज माय ऑर्डर, स्टेटस इज कन्फर्म, एस्टिमेट टाइम इज दिस वन. आणि सेम डेटा यूआय ला ऍज अ यूआय इंजिनियर्स यूआय ला शो करतात. तुम्हाला तिथं दिसतं की तुमची ऑर्डर प्लेस. मैं बस यही डिस्कस कर रहा हूं, अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द सेम. जो भी डिस्कशन होने वाला है, जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है, दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बेस ऑन द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल. That communication is going to base on the HTTP methods. That communication is going to base on the status code. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. Means the HTTP request is going to send, JSON response is going to take, database call, internally database. आपण database ला discuss करतच नाहीये. We are not going with the database. Our course is the UI and API. Database automation is a different. ठीक है. Then success response means कौन सा आएगा सर? 200. And internal processes means this one is nothing but redirect to the multiple application. समजतं? इथं चेक रेस्टोरेंट म्हणजे झोमॅटो का स्वतःचं रेस्टोरेंट नाही आहे. झोमॅटो इज अ वन सर्विस, वो अनदर सर्विस से कनेक्ट करने वाली है. झोमॅटोचं स्वतःचं पेमेंट घ्यायचं नाही आहे. झोमॅटो गुगल पेला त्यांच्या गेटवे एपीआय गेटवे देतो. गुगल पे विल सेंड द पेमेंट टू झोमॅटो. झोमॅटोकडे स्वतःचं ऍड्रेस लोकेशनचं एपीआय ऍड्रेस लोकेशनचं ऍप्लिकेशन नाही आहे. दे आर गोइंग टू सेंड देअर एपीआय टू द गुगल मॅप. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस, ऑडिबल. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Audible. So for example, again, if I am going with the another example, हाँ जे आता आपण केलं,
ओके, अमेजॉन फूड. सो दिस आर पीपीटी अवेलेबल, बट मैं बस आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ. दिस आर सम वर्कशॉप पीपीटी. ओके, सो मैंने क्या किया था सर, लॉग इन किया था. देन आफ्टर दैट आई हैव गो टू दी अनदर पेज. देन देर इज सम प्रोसेस विल हैपन. देन पेमेंट विल डन. देन मेरा एड्रेस पे वो डिलीवरी होगा, एवरीथिंग. ओके, so the same process in this flow chart, the place order API's flow, end user can be anything. मी सेम ऑर्डर माझ्या मोबाईल वरूनही करू शकतो. मीन्स मोबाईल एप्लीकेशन इज अवेलेबल. अमेजॉन, गूगल पे मोबाइल एप्लीकेशन है, और आपके पास वेब एप्लीकेशन भी होते हैं. ठीक है. So first of all, I have selected this. So I have performed some post call कि add API card add, sending some JSON request कि ID है, प्रोडक्ट का ID ये है, और क्वालिटी मुझे 1 चाहिए. तो ऑर्डर करण्यासाठी काय गोष्टी केल्यात की सर आय हॅव ॲडेड inside the card, then I have selected my address जो मैंने अभी किया था. I have created selected some payment. हाँ, पेमेंट सिलेक्ट केल्यावर यहाँ पे मेरे पास रीडायरेक्ट हो गया था मल्टीपल एप्लीकेशन. मीन्स अगेन आई हैव द APIs redirect 300 to 399. Then I am sending, then I am placing one order. ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑल एंड ऑर्डर कंफर्मेशन. इसके एपीआईज आप देख सकते हो. दिस आर द सैंपल एपीआईज. कि फर्स्ट ऑफ ऑल एड प्रोडक्ट टू दी कार्ड मीन्स आय एम परफॉर्मिंग सम पोस्ट कॉल. ऍड करतोय वेब सर्व्हरवर काहीतरी क्लायंट, रीड नाही करत आहे, ऍड करतोय. गो टू द कार्ड मीन्स कार्ड में जाके मैं कुछ कार्ड में ऐड करूंगा तो पोस्ट कॉल. बस मुझे बस कार्ड को व्यू करना है, मीन्स रिट्रीव करना है डेटा को. तो मैं क्या कर रहा हूं सर, गेट कॉल परफॉर्म कर रहा हूं. रिस्पॉन्स भी देख सकते हो जेसॉन में आ रहा है. अगेन ऍड्रेस जर मी क्रिएट करतोय ना, सपोज देर इज अ एड्रेस एंड आई वांट टू क्रिएट न्यू एड्रेस, तो मैं पोस्ट कॉल. मैं सेम एड्रेस को अगर मैं अपडेट कर रहा हूं देन आई विल गो विथ द पुट कॉल पार्शियल. मी तो एड्रेस रिमूव्ह करून नवीन एड्रेस टाकणार, पोस्ट पुट कॉल. बट यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस है, उसमें से एक ही सिलेक्ट करना है सर. गेट नो, बस रीड तो किया है. सिलेक्ट पेमेंट मेथड पोस्ट. एपीआई पोस्ट जब भी आएगा तो आपके पास रिक्वेस्ट रहेगी एंड आपके पास रिस्पांस रहेगा. गेट जब भी आएगा तो आपके पास बस रिस्पांस ही रहने वाला है. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? आज बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. दिस टाइप ऑफ होल फ्लोज फॉर सैंपल एप्लीकेशंस वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इन अवर फ्रेमवर्क. मी फक्त आज हेच सांगतोय की एपीआय 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 आज फक्त अवेअर करतोय टर्मिनॉलॉजीची. देन प्लेस ऑर्डर. ऑर्डर प्लेस करतोय म्हणजे मी सर्व्हरला रिक्वेस्ट सेंड करणार आहे, पोस्ट कॉल सेंड करणार आहे. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस. सी एक्सटर्नल सर्विसेज, पेमेंट गेटवे, SMS, shipping partner API means Amazon is going to communicate with the payment gateway, SMS gateway and APIs. SMS सेंड करने के लिए वो भी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल. Means as a client, we are sending the HTTP request, we are getting the HTTP response. इंटरनल सर्विस कम्युनिकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने वाला है.
एक्सटर्नल सर्विस कम्युनिकेशन अगेन द मल्टीपल एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने वाला है. जर अमेझॉन ने ऑलरेडी 5 इंटरनल सर्विसेज इंप्लीमेंट, सर्विसेज भी बोला जाता है एपीआई को, अगर ऑलरेडी 5 इंप्लीमेंटेड करके रखी है तो इंटरनल सर्विसेज यूज करेगा. एक्सटर्नल मीन्स दुसऱ्याकडनं घ्यायचा आहे डेटा, दुसऱ्याला हँडओव्हर करायचा आहे. सैंपल एपीआई देख सकते हो. पोस्ट, दिस इज द पाथ पैरामीटर. एपीआई कार्ड ऐड पाथ पैरामीटर, ऐड टू द कार्ड. गेट एपीआई कार्ड कार्ड आईडी पाथ पैरामीटर. क्वेश्चन मार्क वैल्यू की इक्वल टू वैल्यू आएगा तो आपका क्वेरी पैरामीटर होता है. गेट एड्रेस, पोस्ट क्रिएट करना है, पोस्ट क्रिएट करना है. गेट गेट समझते हो? ऑडिबल? यस. येस सर. ठीक है. अगेन एक एप्लीकेशन है, मे बी होगा बुक माय शो. बघा बरं सर, समजते. तुम्ही हा, थोडी झूम करा ना. काय करू? झूम करा ना सर थोडं. हा बस. झूम केल्यावर ते पूर्ण व्यवस्थित अरे दिसणार हा, नाही. अर्धीच दिसेल. ओके ओके ओके. बस शो आउट करो. देखो सी, तो नियर अबाउट आई हैव नियर अबाउट 15 to 20 एप्लीकेशंस के ये डायग्राम हमारे पास रेडी. बट फॉर द टाइम बिंग इतने डिटेल में नहीं जाना है. दॅट इज द डिफरंट. ओनली 3 बेसिक ऍप्लिकेशन कसे वर्क होत आहेत, एपीआय म्हणजे काय आहेत, कुठले कॉल असतात, रिस्पॉन्स कसा असतो, आणि एज अ एंड यूजर अगर मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, कोई भी एक एप्लीकेशन, ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दिस आर द कॉमन. एनी एप्लीकेशन, सपोज स्टेपअप लर्न का एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूं, बट स्टेपअप लर्न इंटरनली डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में. आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो बैकएंड में उसका डेटाबेस है कि फॉर दिस कैंडिडेट 1 दिस बैच, फॉर दिस कैंडिडेट 2 दिस बैच. डेटाबेस प्रीवियसली क्या होता था, दे आर मेंटेनिंग सम फाइल्स like the Excel file or any other files. But large secure जब होता है तो database में होता है. So again the same example कि suppose I want to book the movie. So first of all I want to see the city. Now you can see the query parameter question mark सिटी इक्वल टू बैंगलोर, तो बैंगलोर सिटी की मूवी दिखेगी. अगर मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क सिटी इक्वल टू पुणे, तो पुणे सिटी रिलेटेड ऑल द मूवीज. रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो डबल कोट्स. हमेशा जेसॉन का जो डेटा होता है वो डबल कोट्स में होता है. पाइथन डिक्शनरी के अंदर सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट अलो किया जाता है. बट जेसॉन इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डबल कोट्स फॉर द की. गेट मूवी, so it will return the list of all the movies कि मूवी नंबर 1, मूवी नंबर 2, मूवी नंबर 3, ये सिटी में कौन सी मूवी है. फिर आप क्या करोगे सर, आफ्टर द मूवी यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द मूवी, देन मूवी आईडी, शो आईडी. तो सीट सिलेक्ट करना है, देन यू आर अगेन परफॉर्मिंग द पोस्ट कॉल. रीड करतोय किती सीट अवेलेबल आहेत, गेट कॉल. सीट बुकिंग करतोय, पोस्ट कॉल. मला सीट अगेन सर, मुझे सपोज ए बी सीट मैंने बुक किया और आफ्टर दैट सर मैंने डिसाइड किया कि ये भी नहीं चाहिए मुझे, है ना, ये चाहिए सी डी सीट, इसको हटा के मुझे ये चाहिए. तो बैकएंड में क्या होगा, आई एम अपडेटिंग, अपडेट करतोय. पुट 2 सीट बुक केल्या, एकच अपडेट करायचंय, पॅच. समजतंय? ऑडिबल? पार्शियल अपडेट, फुल अपडेट. क्या मेरी बात सबको क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. पोस्ट कॉल बुक पेमेंट करतोय सर. अगेन आय एम दिस हॅव्हिंग द मल्टिपल ऑप्शन. UPI ला क्लिक केला तर UPI च्या ऍप्लिकेशनला जाणार आहे. कार्डला क्लिक केले तर कार्डची ऍप्लिकेशन. परत तुम्हाला ऑप्शन येणार विच बँक, HDFC बँक, SBI बँक, ICICI बँक, नेट बँकिंग, फिर से ऑप्शन. हे परत रिडायरेक्ट झालंय पेमेंटला. पोस्ट कॉल करतोय ना इंटरनली, पेमेंट करायचं आहे म्हणजे कुठल्या थ्रू मोड UPI. सो दिस आर द पॅरामीटर्स मीन्स द पेलोड at the time of creating the APIs. they are defining the schema LLD documentation. जहाँ पे स्कीमा डिफाइन किया जाता है कि आपके पेलोड में कौन सी फील्ड होगी, आपका रिस्पॉन्स कैसे आएगा. दैट विल इम्प्लीमेंटेड बाय द डेवलपर्स कि रिस्पॉन्स कौन से फॉर्मेट सेम ही रहेगा जेसॉन, बट रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें मुझे रिटर्न करनी है. देन आफ्टर दैट, आफ्टर सिलेक्टिंग द पेमेंट, पोस्ट कॉल परफॉर्म होने के बाद आपको बुक कन्फर्मेशन. इथं काय येते, आपल्याला फक्त इन्फॉर्मेशन रिट्रीव्ह होऊन येणारे ऍप्लिकेशन मधून मीन्स द गेट कॉल. ऑडेबल? येस. Audible, sir. Yes, sir. सो इंटरनली जब आप एप्लीकेशन यूज करोगे ना, सो मल्टीपल एपीआई. सी द एपीआई सर्विसेस, मूवी सर्विस, शो सर्विस, बुकिंग सर्विस, पेमेंट सर्विस, युजर सर्विस. सर्विस म्हणजे ह्या एपीआय आहेत सर्व. मूवी बुकिंग एपीआय, गेट मूवीज, इट विल रिटर्न ऑल द मूवीज. आय वॉन्ट द स्पेसिफिक मूवी, गेट असा पॅरामीटर, मूवी ID, ऑल सिंगल. बिकॉज रीड करताना आपण ऑलही रीड करू, सिंगल रीड करू, मल्टिपल रीड करू, डिपेंड्स ऑन द एंड युजर. बुकिंग पोस्ट कॉल, पेमेंट डन पोस्ट कॉल, गेट ID. कम्युनिकेशन काही वेगळं होतंय का? नाही. मी ज्या गोष्टी करतोय त्या सर्व माझ्या स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, क्या मेरी बात सबको क्लियर है? सो होप you understand कि what is mean by APIs, and hope you understand कि APIs में क्या क्या चीजें हमें डिस्कस. See, the API syllabus is very little as compared to Selenium. No, API चा सिलेबस काहीच नाही आहे. 5च गोष्टी आहेत. त्या प्रत्येक API ऑटोमेशन इंजिनियरला माहित पाहिजे. API वर्क कशी करते, स्टेटस कोड काय असतात, कधी कुठला येतो. हाँ, इन डिटेल जब हम जाएंगे, 400 कब आएगा, 401 कब आएगा, 402 कब आएगा, 200 कब आएगा, 201 कब आएगा, 202 कब आएगा, एवरीथिंग. ठीक है. सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन. प्लीज ट्राई टू कंप्लीट today's session, also the postman. So tomorrow we'll start in detail practically and in postman how to verify and validate the APIs. Again we'll discuss for API testing we'll go with the JSON file handling. So we'll discuss how to handle the JSON file, and again we'll try to hit some of the APIs from the postman also. And at least tomorrow we'll create the basic script to get the data from web server. आता मी ही लिहिली है, मुझे वेब सर्वर से डेटा लाना है. So we have the multiple APIs. That also we'll discuss later. For example, see, कुठला आला रे? 503. Service temporary unavailable. The URL that you are entering is correct, but
सर्वर इज टेम्पररी अनअवेलेबल. कौन से साइट का है? 503 सर्विस सर्वर साइड एरर. 503 stand for service unavailable. Because this, see, previously for most of the batches we have used this APIs, this application, but right now they have not disclosed this application. So let me go with some of the examples. Ready to use APIs. There are some dummy APIs are there. जो भी हम discuss करने वाले dummy APIs पे ही discuss करेंगे. And we have some small application, उसका भी use करेंगे. API key is missing. It require the key. E वाला नहीं चाहिए अपने को. Let me go with the step-up learn. Program, Python automation, demo sites, API test. Get all users. जब आप इस URL को, these are the public URL, okay, इस URL को जब आप hit करोगे, get users, data JSON format में, double quotes. And same one, sir, I want to verify whether this API is working or not. तो Postman में आप क्या करते हो? Sir, Postman में I am going to create one request. कौन सी get call है? I will perform this one. 200 status code. Successful. Response. And same what? In automation, we have the request library, and inside request library, we have the HTTP methods. So request library इथं मी implement करून ठेवलेली आहे. Suppose response equal to request dot get, and this is the URL, and I'm just printing the response. फक्त चेक करतोय रिस्पॉन्स कुठला येणार आहे. 200 status code. Means it is successfully working. Then we'll discuss again कि सर मुझे इसका डेटा भी देखना है. Then I am going for response.contain. It will return the response of API. कौन से फॉर्मेट में? JSON format. Sir, this JSON format we are not going to use inside the Python. इसको मुझे डिक्शनरी पाइथन में कन्वर्ट करना होगा. So for that purpose we are going to use the import JSON. हा जो रिस्पॉन्स येतोय याला मला एका डेटा मध्ये आणायचा आहे. म्हणजे रिस्पॉन्स JSON.loads मीन्स मेरा जो JSON का रिस्पॉन्स है उसको मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट करने वाला हूं. And printing the data. आता आपल्याकडे पायथॉन मध्ये डेटा आला. So whatever the operation you need to perform, you can perform. Now this is the dictionary. You can check the type of data. Type of data is the dictionary. कुठे गेला रे शेवटी? तो मेरे पास डेटा है. वंस वी हैव द डिक्शनरी, तो जैसे आपको इटरेट करना है वैसे आप उसको इटरेट करोगे. आई वांट द डेटा ऑफ डेटा. सर डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी इज अ वेरिएबल, उसके अंदर एक डिक्शनरी के वेरिएबल के अंदर डेटा नाम की की है. ऑल द डेटा. इनसाइड दैट ऑल द डेटा, दिस इज द लिस्ट, एंड अगेन लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिक्शनरीज. लिस्टचा 0th इंडेक्स
म्हणजे ID1 जो UI ला दिसतोय, जो आपल्या वेब सर्व्हरला दिसतोय ID1, तो डेटा आपण इथं एंटर करून आणणार आहेत. आता हा डेटा कुठं प्रेझेंट आहे सर? वेब सर्व्हरला प्रेझेंट है। वेब सर्वर से मैंने मेरे स्क्रिप्ट में डेटा लेके आए सर, मुझे बस इसका इमेज देखना है, ID1 का इमेज। ओके, आई विल गो फॉर द अवतार ऑफ दिस, अवतार इन द सेंस इमेज। आता ही इमेज माझ्या वेब लोकल सर्व्हरला नाही आहे, इमेज इज प्रेझेंट ऑन द वेब सर्व्हर। आय वॉन्ट टू सी दिस इमेज। दिसतं ऑडिबल? ID2 की इमेज, यस आई कैन सी द ID2 इमेज सर। ID1 की इमेज, ओके। लिस्ट है, लिस्ट को मैं इटरेट कर सकता हूं, ऑल द इमेजेस आई कैन फेच all the images. So I will go for our actual code for I in a range of length of data of data. Array, I will start from 0 to length -1 and ith index की image. So all the images I am going to fetch from the web server. जी बघायची ते बघू शकतात हो। I want to see this image. कल को जाके किसी ने बोला कि I want to see the this 66 image. I want to see this image. डेटा कुठे आहे? आपल्याकडे नाहीच आहे, वेब सर्व्हरला आहे। एज अ क्लाइंट वी आर रिक्वेस्टिंग टू द वेब सर्वर। एज अ क्लाइंट अगर मैं डेटा को रिट्रीव करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे गेट मेथड परफॉर्म किया है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस, ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Suppose I want Yes, to sir. see the data of 83 users. So practically we'll go with the each and every concept of this. मैं बस basic script आज discuss किया हूँ, but in detail we'll discuss what is the request library. We'll go with the some of the documentation of request library. Methods जसे इथं post है, get है, तसे post, put, pass, delete. कब किसको अपडेट करना है that we will check, and real time applications that we have उसको भी हम चेक आउट करेंगे। लेट मी गो विद द ओपन इन PyCharm स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, Python app running on this one. So we have one application. So API testing जो हम फ्रेमवर्क डेवलप करने वाले हैं उसमें हम इस एप्लीकेशन पे ऑल द CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन, लोकली इम्प्लीमेंटेड है। इसके API डॉक्यूमेंटेशन हमने भी क्रिएट करके रखे हैं एज अ, मुझे अगर स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो मैं कैसे स्टूडेंट का डेटा ला सकता हूँ, मुझे अगर स्टूडेंट को क्रिएट आईडी से लाना है तो कैसे करना है, मुझे अगर स्टूडेंट को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है, UI and API से। ठीक है? So this is for today's session. So tomorrow and day after tomorrow we'll start with the basic documentation of APIs. बेसिक स्क्रिप्ट आपण लिहूया, देन अंडरस्टँड करूया की व्हेरिफिकेशन व्हॅलिडेशन कसं करायचंय। देन विल गो विथ द एक्चुअल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट जहां पे मुझे नॉलेज लगेगा। अगेन रिपीटिंग द सेम, पाइथन मुझे नॉलेज लगेगा, पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, पाइथन की फंक्शनल प्रोग्रामिंग, पाइथन का डिक्शनरी मुझे लगने वाला है, पाइटेस्ट वी रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग द फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। ठीक है, चलो। So again, the next two or three lectures will be the understanding how to write the script, how to process the APIs, and once our understanding is clear, then we'll jump to the next level. Okay, chalo. Okay, if you have any doubt, please let me know.